everyone. May I have your attention, please? Thank you so much for being here, and apologies to those who were on time. But थोड़े से participants जो हमारे हैं, they were on the more standard time, so we had to wait for people to come and join. I'm Samal Tariq. I work with CERT as the marketing and partnerships lead. And before we start the session, and I want to start with a thought, and my apologies to the academics here, because I'm going to quote Shehzad Roy, when he said, मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फिक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे. So I think with that thought, CERT और बिलाव का जो काम है उसको लेकर हम jointly ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिकॉज काम दोनों के डिफरेंट हैं, बिलाव का और CERT का, बट डायरेक्शन एक ही है एंड कॉमन गोल जो है स्पेशली एजुकेशन को लेके दैट इज द सेम. बिलाव, फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, इज पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम एडवोकेसी है, लिटिगेशन है, एंड इट्स बेसिकली टू होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल. सिटीजन एडवोकेसी पे बिलाव जो है वो बिलीव करता है. And CERT is an evidence-based organization जो कि evidence के through decision making को बेहतर बनाना चाहते हैं. So without taking more time, I think I'll hand over the floor to Maruf. Maruf is the president and CEO of CERT, and he's also the chairperson of the lab. Not the chair, but the vice chair. Thank you so much. Thank you, everyone. Really excited about this session. And I think we had to change the venue for you. I see Sabir Saab so we had to change the venue because the response was amazing. Let's see if everybody shows up. So we had over, I think, 140 people respond. So, maybe some people will step in as they come into this session. So, as I said, extremely excited about this session. I think those of you who don't know, Faisal just recently published a book, which is going to be the theme of the first hour of our discussion, our session, Educational Conundrums of Pakistan. So let me first introduce Faisal, although he doesn't need any introduction. Dr. Faisal Bari, thank you for coming. It's a pleasure to have you. He's a distinguished academic who has focused his work on economics of education, social protection, and economic development. So long association with LUMS, of course, as a professor, as head of the department, belongs to the Econ department, also executive director of the MHRC, if I remember it correctly. And then, his last stint at LUMS was Dean of School of Education. So a lot of experience from that end. Of course, Senior Research Fellow and CEO for many years of Ideas. And then more recently, I think this is 2-3 weeks old news. So the incoming Vice Chancellor of a new university in Lahore, National Institute of Technology, which is affiliated with Arizona State University. So welcome, Faisal. Really glad to have you. So let me first sort of frame the issue. And then this is going to be sort of more of a conversation. We're not sitting on sofas, and this is supposed to be a fireside chat without fire or a fireplace, but we'll do. It's more of a conversation, and towards the end, I'll invite you all to ask questions. For each section of this long session, we'll have a Q&A. So you'll have the opportunity to ask us questions about the book, about his work in the first session, and then again as part of the panel. So let me frame it a little bit. I really love by the way, the title of the book and the choice of the word conundrum. Because a lot of times it's either framed as a challenge or
some solution-centric approach to education. EdTech kar le, ye kar le, wo kar le. But conundrum is really the right word, and you have a lot of dichotomy, right? You have on one end Article 25A, which gives right to education to every single child in Pakistan. Yet we spend paltry amount, roughly 2% of GDP on education. We say that we want education for everyone, yet we are not able to provide even quality education to those kids that are in school. Public school teachers are better trained and often paid more than low-cost private schools, yet the quality of education and learning outcomes are better in low-cost private schools. So there are lots of conundrums around education in Pakistan. And with that, I am going to sort of start asking questions. Now, each question is really a series of questions because a lot of these issues are very layered. And if you haven't read the book, if you haven't bought the book, I highly recommend it. It is a collection of his articles over 20, 30 years, and it's really interesting because sadly a lot of those articles are as relevant today as they were when he wrote them, right? Which tells you about the persistence of problems, the chronic nature of these problems. So, to start with an easy and obvious question, just to get everybody sort of situated here. Professor, what inspired you to write this book, right? And I know it's a series of articles. You put them into different themes. Why now? What prompted it? And what did you learn through the process of writing this book and your work? Thank you very much for inviting me. Thank you for coming. For me, it's always a pleasure to talk about education because I spend a lot of time thinking about it, working on it. I have for the last 15 odd years. अखबार में लिखने का मकसद भी यही था शुरू जब किया कि एजुकेशन में मुझे लगता था कोई लिखता ही नहीं. So when Don asked me to become an op-ed writer for them, I told them that my main interest was education and a bit of micro. But I'll focus a lot more on education because nobody writes on education at that time. This is back in 2012 when I started for Dawn. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, that's the area doesn't matter, आप education में देखिए. तो बहुत ज़्यादा मेरा उसी मेरा अब I think there are more people who write on education, at least अभी 3-4 और लोग लिखते हैं. लेकिन उस वक्त तो एजुकेशन लोग समझते थे कि मेन पेज पे नहीं आ सकता, ऑप-एड पे नहीं आ सकता, मेन खबर नहीं बन सकती एजुकेशन पे. So I think some of things have changed, not least because of my idea, but in general I think the issue of education now is more center stage, at least in terms of rhetoric. Now, what is it? So I'm coming from game theory and microeconomics in my sort of training as well as in issues work. And what I found fascinating, Maruf, is the issues of education in Pakistan. I mean, it's just, I find it quite intriguing where country after country has shown and we've realized the importance of education, the importance of human development. चाहे आप functional terms में देखें, चाहे आप उसको in ultimate end terms देखें, what's the purpose of development if not development of the people. तो इसी तरह अभी देख लें उसको, उसकी importance अब बहुत ज़्यादा clear है literature में भी बाकी जगह पे. लेकिन yet here's a country that rhetoric में कहती रहती है हाँ education, आप जब पूछेंगे किसी politician से, it's one of the top priorities etc. But never, जो आपने बात की 2% से कभी ज़्यादा हमने उस पर spend नहीं किया public sector में. हमारे कभी हम करीब भी नहीं आए इसके even primary के बच्चे सारे जो हैं वो enroll हम कर सकें जो grade 1 में आते हैं या early education में, उसके कभी 100% के करीब नहीं आए. enrollment के drop out वगैरह तो बात की बात है. All of the metrics that you think and you see country after country achieving, Pakistan में वो नहीं.
कभी भी नहीं, ठीक है। और वो it's irrespective of which government is in power, which type of government we have, चाहे वो military है या political government है, किसी में भी education, despite all the rhetoric, has never been. And to me, that's the strangest thing that you can think about. क्योंकि इंडिविजुअली आप देखें तो लोग क्या कर रहे हैं, पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, कहीं भेज रहे हैं, जितना अच्छा स्कूल को जा सकते हैं कोशिश करते हैं उतने अच्छे स्कूल में जाएं। लाहौर शहर में आपको 1.25 लाख रुपया फीस का स्कूल मिल जाता है, कराची में भी हम श्योर ऐसे ही होगा, इस्लामाबाद में ये वो, सो 1.25 लाख रुपया और 26 मिलियन बच्चा आपको, यानी पर्सनल प्रायोरिटीज तो बड़ी क्लियर नजर आती है। Yet as a society and as a state, वो प्रायोरिटीज हमें बिल्कुल जो आपने conundrum की बात की, I mean, I just don't understand. That's what intrigued me. यार ऐसी क्या चीज है which is not translating from this personal side to the public side, और वो उसमें फिर बहुत ज्यादा आज भी काम चल रहे हैं, उसमें फिर सारे इश्यूज जो इस किताब में भी हैं वो सारे देखे। तो ये प्राइमरी मोटिवेशन जो थी एजुकेशन रिसर्च की, वो ये रिसर्च में फिर होता ये था कि जिस भी एरिया पे मैं काम कर रहा होता था, मैं कोशिश करता था कि उसी पे ऑपेड भी लिखने की कोशिश करूं, ताकि वो जो भी सोच रहा हूँ वो इधर अखबार में भी आ सके। वो अखबार की राइटिंग इज वेरी डिफरेंट, तो उसमें हमेशा आप देखेंगे, अगर आप किताब नहीं मत पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर आर्टिकल शुरू होते हैं किसी एग्जाम्पल से, किसी बंदे की कोई एग्जाम्पल दी हुई है कि वो किस किस्म के मसाइल फेस कर रहा है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ ताकि वो कनेक्शन लोगों को समझ आ सके कि क्या वजह क्या हो। अगर मसलन कोई ये कह रहा है कि मैं बच्चा क्यों भेजूँ स्कूल, कि मैट्रिक करके भी उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो बड़ी जेन्युइन बात कर रहा है, तो उसको ये समझाना कि नो इट्स अ राइट एंड ऑब्लिगेशन इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दैट। उसका मसला और है, वो उसको देख रहा है कि नौकरी जो है वो मिलती है बच्चे को या नहीं। आप उसे कह रहे हैं नहीं बच्चा पढ़ाओ जरूर क्योंकि ये तुम्हारी कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो ना करने वाली बात हुई ना फिर। So what's the solution? Where do we go from there? Or for that matter, any of these issues that you talk about, right? मैं और एक एग्जाम्पल आपको और देखें, मसलन मैं एक ड्राइवर मैंने मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं मेरे हमसाये की बेटी ने अभी MSc की है, तो वो जो है उसको किसी स्कूल में एज टीचर नौकरी मिल गई है, तो वहाँ पे उसको 8,000 रुपया मिल रहा है। तो कहता मेरी जो तनख्वाह है उससे 4 गुना है एज ए ड्राइवर। मैं उसे कह रहा था यार तुमने 16-18 साल पढ़ा है, उसके बाद तुम्हें 8,000 मिल रहा है, तुम ड्राइवर की नहीं बन जाती। जाहिर है जेंडर रोल्स हमारे यहाँ डिफरेंटली डिफाइंड है, ये वो और बहुत मसले हैं इन लेबर मार्केट्स, लेकिन here's an example, right? हम ड्राइवर्स और कुक्स को 40,000, 30,000, 35,000 अब दे रहे हैं। मिनिमम वेज हमारी अब कितनी हो गई है, 47,000 है। और हमारे टीचर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज्यादातर जिन्हें हम लो फीस स्कूल्स कहते हैं या NGO स्कूल्स हैं, TCF माइट बी वन ऑफ द बेस्ट ऑब्वियसली ऑफ इट्स काइंड, 18,000 रुपया TCF देता है वो। हालांकि मिनिमम वेज लॉ के अंडर ये टीचर्स भी कवर्ड है एक्चुअली, लेकिन नहीं होता। वो हुकूमत ने भी आंखें बंद की हुई हैं, वो जुडिशरी में भी कभी नहीं आए ऐसे केसेस, वो किस है। So those are the things that really get me off. I mean, you write about things that tick you off, that make you tick, and that's been education for a long time for me, much more than any other area. I also love Robert Saab often says that no matter what question or challenge Pakistan faces, the answer is always education, right? And it's really a very core issue. Again, let's focus in on the book. Okay? So in the book, you talk a lot about this massive gap between what we say or what we promise, rather, to give right to education. But at the same time, the current status of human capital development in Pakistan, the reality of it, you touched on it just now. And you've talked about the political economy challenges and stuff. So let's unpack that a little bit. Okay, why is this not an urgent priority for Pakistan? When you describe the reality of human capital in the book, I
mean, this should really be a big issue. तो मुजाहरे क्यों नहीं होते, urgent priority क्यों नहीं है पाकिस्तान के लिए, and what are the political challenges? एक तो आपने संजय के देखें 25A की लैंग्वेज मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे this is created. It says the state shall provide free and compulsory education to all 5 to 16-year-olds. Free and compulsory. This is the only right in the basic rights section that is worded both as a right and as an obligation. यानी free भी है, आपका right है कि आप free दें, point of delivery is free. Compulsory भी है, आप नहीं आएंगे हम उठा के आपको स्कूल ले आएंगे अगर आप 5 से 14 के दिन. आप नहीं आएंगे, आपके माँ बाप को हम जेल कर देंगे अगर वो आपको नहीं आने दे रहे. This is an obligation. It's like getting inoculation, etc. etc. जबरदस्ती हो सकती है. और बहुत सारे जो लॉज बने हैं प्रोविंसेस में और इम्प्लीमेंटेशन, उसमें क्लॉजेस हैं 50 रुपया रोज, 100 रुपया रोज फाइन हो सकता है पेरेंट्स को. अगर ये और बात है, हमने अब कभी डिलीवरी की नहीं है और स्कूल नहीं है, अपनाना नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते. लेकिन दिस इज द ओनली राइट दैट इज वर्डेड दिस वे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. राइट? ये क्यों है, कहां से आया, ये बड़ी समझने की जरूरत है. मेरे ख्याल में तो मैंने उस पर भी कुछ काम किया, जो बेटी 18वीं तरमीम पे काम कर रही थी. मुझे लगता है कि छापा मारा, इंडिया ने किया, फलाने ने किया, या चल रहे थे, but it looks good. Literally there was no discussion about it. There was no civil society movement to speak of that was forcing the government to do it. India had done it a few years ago before us. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली गवर्नमेंट को हिदायत की थी कि आप राइट टू लाइफ के अंदर हम इसको देखते हैं, आप इसको डालें आप बेसिक राइट सेक्शन में. यहाँ ऐसी कोई बात नहीं. यहाँ हम 110 तरमीम या जितनी भी थी 18वीं तरमीम में वो कर रहे थे, तो उसमें एजुकेशन डाले, हेल्थ नहीं डाला था, क्योंकि हेल्थ बाकियों ने भी नहीं डाला हुआ था. हालांकि राइट टू हेल्थ का भी समझ आती है कि राइट टू हेल्थ भी बनता है बेसिक चीजों में, लेकिन वो नहीं है. एजुकेशन में ये हो गया बगैर तैयारी, बगैर वर्किंग आउट के इसका मतलब क्या होगा फाइनेंसेस में. और फिर एक सबसे ये उसी वक्त हुआ जब फेडरल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट से एजुकेशन को हटा भी रही थी. यानी कमाल बात है ना, फेडरल गवर्नमेंट ये बोल दे रही है प्रोविंसेस के बिहाफ पे कि प्रोविंसेस अब ये करेंगे, उनको हम वो पैसे दे देंगे जो एजुकेशन किए हैं, वो जाने उनका काम है. प्रोविंसेस में फिर क्या हुआ, कोई 5-6 साल लग गए हमें लॉज ही बनाने में. वो अभी तक उसके आगे नहीं बने हैं रूल्स वगैरह, लेकिन वो लॉ कंपल्सरी एजुकेशन लॉज में वही बनाते. मेरा ख्याल है एक प्रोविंस ने 13 में किया था, एक ने 14 में, एक ने 15 में. इस तरह करके वो लॉज बनाते बनाते बड़े आराम से काम हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत जगह रूल्स वगैरह नहीं. सो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई इसका किसी किस्म का वो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्या वजह होगी. अच्छा, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट. आई हैव रिटन अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन दिस विद अ नंबर ऑफ को-ऑथर्स आल्सो. इरफान मुजफ्फर साहब के साथ भी मेरा एक पेपर है इस पे कि भाई क्या वजह है कि जो कलेक्टिव वॉइस है एजुकेशन की, एजुकेशन के लिए, वो पाकिस्तान में इतनी कमजोर थी. एक चीज जो मुझे समझ आती है, आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो, फ्रेमवर्क या एक तरीका सोचने का दिया था एल्बर्ट हर्शमैन ने क्वाइट सम टाइम अगो. एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी का फ्रेमवर्क, उसकी किताब है बड़ी अच्छी, अब तो नेट पे फ्री मिल जाएगी आपको, जिसमें वो काफी ये बात करते हैं ना कि भाई जो इकोनॉमिक मार्केट्स हैं उसमें एग्जिट बड़ी आसान होती है. यानी आप टूथपेस्ट लेके आए, एंड आई होप आप लेके आते हैं, तो टूथपेस्ट आप लाए हैं, आपको टूथपेस्ट नहीं पसंद है या आप वो छोड़ते हैं, कोई और टूथपेस्ट खरीद लेते हैं. यू एग्जिटेड फ्रॉम वन प्रोडक्ट एंड वेंट इनटू अनदर वन. Exit is a vote. It will tell the producer कि कौन सी चीज बिक रही है नहीं. That's the notion of competition जो हम इकोनॉमिक्स में बहुत यूज करते हैं. जिसके पास ज्यादा कंज्यूमर चल जाएंगे वो चीज ज्यादा बिकेगी, दूसरे पे प्रेशर आएगा या ठीक कर लो या वो मर जाएगा. This is how companies survive. Politics में लॉयल्टी ज्यादा होती है, तो आप वॉइस यूज करते हैं. मसलन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, उसमें कोई ऐसी बात लीडर ने कर दी जो आपको पसंद नहीं आई,
तो आप फौरन एग्जिट करके दूसरी पार्टी में नहीं जाते, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट बहुत होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसी पार्टी में आप वॉइस करें अपनी चीज कि भाई यार ऐसे नहीं, ऐसे मैं भी ये कह रहा हूँ, बाकी भी कह रहे हैं, आप कोशिश करते हैं वॉइस को इस्तेमाल। सो एल्बर्ट हर्शमैन का कहना था कि इकोनॉमिक मार्केट्स में एग्जिट बहुत है, and that's what we use as a main discipline for imposing what is sovereignty of the consumer, और political side पे voice ज्यादा है, exit बहुत कम। तो और वो voice obviously based है on issues of loyalty। मुझे ये लगता है कि over time मैं इस framework को यहाँ अगर education में use करूँ कि 80s में 80 की दिहाई में हमने फैसला कर दिया कि हमने एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, हमने इजाजत दे दी कि प्राइवेट सेक्टर आ जाए, एक किस्म का हमने इसको कमोडिटी और इंडस्ट्री बना दिया। अब उससे क्या हुआ है, आई थिंक 2-3 इंडस्ट्रीज जो बहुत ग्रो की हैं, आप पिछले 30 साल में देखें, उसमें से एक एजुकेशन है। आज हमारा 45% बच्चा जो एनरोल्ड है वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। दिस इज हैपेंड ओवर द लास्ट maybe 4 decades, right? And with massive expansion. Now, what has this done? This has allowed the lower middle and upper classes to exit from the public system of education and go into their own private arrangements. उसकी वजह से जो वॉइस वाला सिस्टम, जो पब्लिक सिस्टम को ठीक करना था, वो वॉइस बिल्कुल कमजोर हो गई होगी। इसका एक बहुत अच्छा एविडेंस सेन एंड आई थिंक हैज अ बुक जिसमें इंडिया और चाइना को कंपेयर करता है, मुझे याद नहीं है वो सेन की अकेले है या वो जो एक इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, सोशियोलॉजिस्ट इंडिया में गए थे ना, के साथ ही काम करते थे, अभी शायद नाम आ जाए यार, तो दोनों की किताबें जिसमें वो इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं, उसमें सेन ये बात करता है कि चाइना ने भी जब मार्केट्स इंट्रोड्यूस की थी तो उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया था, क्योंकि क्या हुआ कि मार्केट्स इंट्रोड्यूस की, अमीर आदमी जो है वो प्राइवेट हेल्थ में चला गया, तो जो पब्लिक हेल्थ है उसका स्टैंडर्ड गिर गया, उसकी आवाज कमजोर हुई, उसमें पैसा लोगों ने, गवर्नमेंट ने कम खर्चना शुरू कर दिया। सो यहाँ भी यही हुआ कि आज अगर आप देखें इस कमरे में इस वक्त 30-40 लोग बैठे हैं, कोई हाथ खड़ा करेगा किसी का, या आप या आपके जानने वाले कोई पब्लिक स्कूल से आ रहे हैं आपके सामने, 1 2 3 4, खुद आप पब्लिक स्कूल गए हैं? कौन सा स्कूल था? डिविजनल पब्लिक इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक स्कूल। वो तो कुछ मॉडल स्कूल है, कैडेट कॉलेज, एचसन कॉलेज इज अ सेमी पब्लिक इन सम वे। अब कोई एचसन जाए, मैं एचसन जाए कहेंगे एचसन पब्लिक स्कूल है, वो तो पब्लिक स्कूल है, राइट? किसका बच्चा आज जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल? सबसे जो गरीब आदमी है पाकिस्तान में उसका बच्चा है, क्योंकि कोई अगर अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट तो वो लगा। So that exit has made, who is going to speak for public school anymore? The one whose voice is the weakest in Pakistan, गरीब आदमी, उसके लिए कोई क्यों बोलेगा? यहाँ पे बीकन हाउस और बाकियों ने फीस बढ़ाई, फौरन सुओ मोटो हो गया, सिंध हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया। वो पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उससे साहब ने फौरन सुओ मोटो कर दिया, वो जजमेंट भी आ गई कि 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। 26 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, गवर्नमेंट स्कूलों में जो जा रहा है उनको गिनती तक आती नहीं है। असर और हमारे नेट और बाकी आप रिजल्ट्स देखें, सारे ये शो कर रहे हैं कि तकरीबन 90-95% of enrolled children in both the private schools and government schools, especially government schools, are way behind where they should be. ना 2-3 4 साल ग्रेड में पीछे हैं जहां उन्हें होने, उसका कभी सुओ मोटो नहीं हुआ। वो सारे बच्चे भी पाकिस्तानी ही हैं लेकिन वो, तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल इकोनॉमी की ये है कि 80 से जब से हमने प्राइवेटाइज सारी चीजें की है ना, और अब सिर्फ ये तालीम नहीं, सेहत, पानी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हमने वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर में की। The rich people, the connected people have withdrawn from public services, and that has had a tremendous effect on the voice for public.
I feel that many people now in Pakistan feel कि इन सर्विसेज के लिए स्टेट को कहने का कोई फायदा नहीं, स्टेट ने नहीं करना, और अगर करना है तो बंदे अपने खुद कोई सोल्यूशन कर लें। अगर वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो जाहिर है फिर या स्कूल नहीं आएंगे या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह बच्चा भेज देंगे कुछ अर्से के लिए, लेकिन और कोई उनके पास नहीं। स्टेट को फोर्स करना, उसको पब्लिक विल पे लेके आना is no longer possible on some of these. My feeling is people have given up on the state on these. जहां उन्हें लगता है कि हाँ वहां हो सकता है बिजली पे कोई और चीजों पे, तो वो सड़क पे आ जाते हैं और वो हो भी जाता है। लेकिन तालीम पे बहुत कम मैंने देखा है कि कोई इस तरह का एजुकेशन सोचे भी कोई। आप खुद सोचिए, would you organize for education in this one? It would be, the organization cost seems to be very high now in this area. And the reason, there's no reason why it should be the case, but now the weight of history is so much that it looks almost impossible to walk back from this. Comparison has, so this was not inevitable. Let me make that very clear. Right? This political economy has been created by design, not by default. It was by policy we chose to allow private sector this role, to commoditize education. It was by design, in the sense that there are many countries, including Sri Lanka, for example, जिन्होंने 60s में कह दिया था कि अगर कुछ प्राइवेट स्कूल है तो ठीक है, अब नया कोई प्राइवेट स्कूल हम नहीं खोलने देंगे। चॉइस थी ना, पॉलिटिकल चॉइस उन्होंने की। आज उनका कितना, हमारे से 98-97% लिटरेसी रेट है और तकरीबन 93-94% बच्चे जो है वो पब्लिक स्कूल से आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वहां पे बहुत कम है। चॉइसेस हैं, चॉइसेस जो गवर्नमेंट और सोसाइटीज करती हैं, जहां हमारी चॉइस की है और उसके हम कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, डिफॉल्ट से नहीं हुआ। I think privatized education, privatized I think you said it's a choice, and I'm glad you used the word choice again. It almost feels like it's a value statement as well. We as a country, as a people, I mean, how do we decide as a community, as a country, who should get education? आप एक तरफ तो कह रहे हैं education for all. It seems like it's like saying Declaration of Independence, how all men are created equal, while slavery and all of that was legal, lawful and pervasive, right? So, what does it say about that? आपने भी men काम correct कर। वो तो लिखा हुआ है ना। You'll have to go back and लेकिन so what about the value system? ठीक है, the choice and the elite capture वो सही है, बात है कि you made a choice and went privatized education, but as a country, it's real. I think so. This is more speculative. This is more hypothesis and hypothetical. But I have a feeling कि हमारी इस तरह politics develop हुई है ना, उसका बहुत हाथ है जो political economy में। हमने बस ना, I was reading this lovely book. By the way, ये 10 कॉपियां मैं अपनी किताब की भी लाया हूँ, अगर आप खरीदना चाहें तो जरूर खरीद सकते हैं। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन। और अगर ये काम हो तो फिर मुझे सिर्फ WhatsApp कर दीजिएगा, I have it delivered to you wherever you are, not free of course. तो एक किताब का नाम है, अभी आई है लॉरेंट गायर की, गायर जैसे किताब का नाम है गन पॉइंट कैपिटलिज्म, enforcement and development of capitalism in Karachi. He's a anthropologist, sociologist who's written this book. इसकी पहले भी एक किताब है कराची में. And one of the points he makes is कि भाई जो state के imperatives थे right after 47, वो बहुत सारे बड़े क्लियर थे। एक बहुत बड़ा imperative था development of industry, कि इंडस्ट्री जितनी जल्दी डेवलप, उसके लिए सब्सिडाइज भी किया, उसके लिए उन्होंने वो बनाए कि भाई गवर्नमेंट जो है वो बना दे, फिर प्राइवेट को दे दे, उसके लिए हर किस्म की सब्सिडी दी, 2 एक्सचेंज रेट भी चलाए, वगैरह वगैरह, जो कुछ हम कर सकते थे
वो कर रहे थे हम. Among those was also the need to suppress labor, not let them organize, keep them docile, and not let them protest. And if protest would go beyond a certain point, the state would treat it as a national security issue. कहते क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो labor unrest becomes a national security issue and therefore needs to be quelled as such. तो वो जो डेवलपमेंट हुई in how we treat labor, वो बड़ी क्लियर थी कि उसमें लेबर ट्रेड यूनियन शुरू से बदमाश हैं, फलाना है, ये इनसे बात नहीं हो सकती, यहाँ मैनेज कर सकते हैं करें, यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं. And he talks about a lot of things like the surveillance that came into this system of looking after labor, किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको पकड़ना है, ये वो, और उसमें वायलेंस भी बहुत थी. और वो लेबर राइट्स का हाल तो आपको पता है. His point of departure in that book is the 2012 या 11 में जो बल्दिया में आग लगी थी अली एंटरप्राइजेस में, इसमें 250 बंदा वहां जल के शहीद हो गए थे. वो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है कि उस फैक्ट्री में कभी इंस्पेक्शन नहीं हुई थी. उन्होंने सारी एग्जिट्स बंद की हुई थी सिवाय एक के, ताकि चोरी ना हो. 750 बंदा उस दिन वहां था, क्योंकि वहां फाइन देनी थी. उस दिन आग लगी तो जाहिर है फिर यही इसी तरह की चीज, कोई फायर इक्विपमेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वगैरह वगैरह. Now I draw the parallel from there to say कि बहुत ज्यादा स्टेट का, डीप स्टेट कहने जो भी आप उसको कहना चाहें, इस तरह वो मैनिफेस्ट हुई है. उसका इम्पेरेटिव था कि जितने, मुझे लगता है जितने लोगों के ऑर्गेनाइज करने के तरीके थे, वो सिस्टमैटिकली या हमने डेवलप नहीं होने दिए या उनको तोड़ दिया. स्टूडेंट यूनियन हो या लेबर यूनियन, किसी किसी पॉलिटिकल पार्टीज में देखें कितनी तोड़ फोड़ रही है ओवर दी 75 इयर्स. हर किस्म की तोड़ फोड़ रही है. उनको मैनेज करना, बाकी करना, उनकी गलतियां हो, किसी और की गलतियां, वो छोड़े. बट द फैक्ट इज के, और फिर 80s में the entire philosophy of the country seemed to turn around in the Reaganite and Thatcherite manner to I, me, and my family at max. And it was a way to move forward individually, not collectively. Collective solutions हमने by almost design, चाहे वो स्टेट के हो या और हो, हमने आहिस्ता आहिस्ता वो सारे obliterate कर दिए. पब्लिक स्पेसेस खत्म हो गई, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मिल के काम कर सकते, वो हम खत्म. We are a bunch of 250 million individuals, but very little organization with each other and ability to get to work together with each other. बहुत कम है हमारे पास स्पेसेस. वो आप किसी का, अब मैंने आदिल नजम के साथ 2017-18 में यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की थी, जो यूथ पे थी. यूएनडीपी की वेबसाइट पे आप कभी देखिए, उसमें हमने एक यूथ सर्वे भी किया था 5-6 हजार यूथ अक्रॉस पाकिस्तान. उनसे ऐसे सवाल पूछे थे कि भाई, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन्वॉल्व्ड विद थिंग्स आउटसाइड योर हाउस, हाउ मेनी आर यू ऑफ आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी क्लब और अ लोकल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कोई और, कोई लाइब्रेरी गए हैं, कभी कोई कॉन्सर्ट में भी गए हैं, कभी फलानी चीज की है, ये वो. The numbers that you will see there are mind-boggling to me at least. 89%, 87% saying कि आज तक कभी लाइब्रेरी नहीं गए, आज तक कभी किसी कम्युनिटी क्लब वगैरह में नहीं गए, आज तक हमने कभी कोई एक्टिविटी घर से बाहर किसी लोगों के साथ मिलके नहीं की. लड़की लड़के में जाहिर है बहुत फर्क है. ये जेंडर, वेरी जेंडर्ड इन दिस सेंस. लड़कियों का तो और भी बहुत मुश्किल है ना बाहर जाना, या एक्सेस टू अनसुपरवाइज्ड एक्सेस टू इंटरनेट, ये वो, उसमें और भी बहुत मुश्किल. लेकिन ऑन द होल यू फाइंड हियर इज अ यूथ दैट इज यूजुअली द मोस्ट ग्रेगरियस अमंग देम. बुढ़े हो गए तो क्या सोशल होना है, लेकिन वो यूथ ही आइसोलेटेड यूथ है. वो अगर कोई काम कर रहा है, स्कूल जाता है या कोई और चीज कर रहा है, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन, ज्यादातर फैमिली बेस्ड, अगर थोड़ा सा अगर है भी हो, वरना कोई सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन में
I think that has had a major impact in raising the cost of organization now. So आप देखिए इस वक्त कुछ सोसाइटी में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, लॉयर्स की हो जाती है कभी, क्योंकि वो एक गिल्ड है ऑलमोस्ट, और कोई तो इतनी मिलती भी नहीं है। एंड दिस इज ट्रू फॉर इवन पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखें कि उनकी ग्रास रूट्स कितनों की हैं, बहुत कम है जिनको ग्रास रूट्स तक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह। एंड सो वो जो तोड़फोड़ हमारे सिविल स्ट्रक्चर्स और सोसाइटी में हुई है, for whatever reason, उसकी बहुत सारी reasons हैं, among them of course the disruption of democracy. I think that has made it very hard to articulate what is the will of the people. वो will of the people जिसे कहा गया था, चाहे आप रूसों में जाए बाकियों में जाए, उसके लिए वो ability to get together और उसके जो फोरा चाहिए वो भी होने चाहिए, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं, और वो बड़ा it's a nice time to the last public interest. Okay. Waqi, I mean, you have collective action problem, लेकिन public interest के issues उनके ऊपर आवाज उठाना, वो civil society की space shrink ही होती गई, and what it's a national security जिसे हमने उसको link किया, लेकिन economic security is real national security. तो सवाल तो बहुत सारे हैं, एक मैं आखिरी करूँगा and then I'll open up the floor for questions. I think we'll give 10-15 minutes for questions. आपने quality की बात की, and obviously we know from a lot of work, Tahir का काम है targeted instruction program, it's a compounding problem, right? I mean वो एक बच्चा जो है first grade में अगर पीछे है तो फिर दूसरे grade में और पीछे है और पीछे और पीछे. By the time they get to 5th grade or something, it's a huge problem, and sometimes we lose them. They drop out. And you mentioned in the book, maybe they should, given the quality. Now, what the problem is, why this incessant focus on enrollment, whereas not understanding these policy actors don't see the linkage between, quality of education and returns to education, right? So, if we talk about that a little bit and go a little bit deeper, critical thinking की जगह में हम तो rote learning में ही कर रहे हैं, right? So from the classroom to the policy actor, quality क्यों नहीं? अच्छा, इसके कई लेवल्स पे जवाब है। एक तो ये आप पॉलिटिशियन से बात करें कि एजुकेशन में आपके पास अब पेरेंट्स आते हैं, वो कहेंगे नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा किस चीज के लिए आते हैं कि अगर किसी गांव में स्कूल नहीं है तो आगे कहते हैं स्कूल खोल दो, या पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए आते हैं कि भाई इस टीचर को इधर लगा दो। तो पॉलिटिशियंस a lot of them feel कि आप एजुकेशन शो करते रहते हैं, हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो ये नहीं कह। अच्छा, दूसरी बात, आई थिंक देयर इज एन इनहेरेंट स्ट्रक्चरल इशू with working on visible versus non-visible things. पॉलिटिशियन से कहेंगे ना, उसको कहेगा देखो मैंने कितनी सड़कें बना दी, नालियां बना दी, पानी दे दिया, स्कूल बना दिए वगैरह, these are visible things. अगर वो कहे कि देखो मैंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कितना काम किया इस इलाके में, तो वो उसको कॉन्क्रीट करे कैसे करेगा, उसकी मेजर क्या होगी वो क्वालिटी की जो वो दिखा सके अगर उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दिखाना। So there is that problem also with quality that doesn't happen with quantity and visible things. ये दो तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्वालिटी के पे फोकस जो है वो प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी इज मच हार्डर टू वर्क ऑन. It's not just that it's not visible, it is much harder to work on it. It is much harder to focus on quality in a number of ways. उसके लिए आपको अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे टीचर हमने कभी हायर ही नहीं किए, ना हम करते हैं। अब हमारे कई सर्वे हैं जिसमें हमें पता लगता है 85%, 90% टीचर्स ये कहते हैं कि टीचिंग वाज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ चॉइस फॉर मी, वो तो और कोई नौकरी नहीं मिली तो हम इधर आ गए। हम सैलरीज भी पैसे देते हैं, फिर जाहिर है फिर वो जाहिर ये एक दफा मैं CSS की एकेडमी जो है मालवा थी उस पर लेक्चर दे रहा था। वो जो एकेडमी शुरू में आते हैं CSS करके, वो कोई 200 बंदा बैठा था, वो उनसे एजुकेशन पे बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा था भाई आप सारों ने बड़ी कोशिश की होगी कि आप टीचर बने,
नहीं बन सके इसलिए आप CSS में आ गए। आपको इसमें दर्द पड़ा मार देता है। किसी जाहिर है किसी ने कोशिश नहीं की थी टीचर बनने की, और वो वजह क्या है, दोनों 17 ग्रेड में आते हैं, बट देयर मस्ट बी सम डिफरेंस के कस्टम बेहतर है, पुलिस बेहतर है लेकिन टीचर नहीं बनना। ग्रेड 17 ही है दोनों, वो एक बहुत बड़ा मसला है। उससे ऑब्वियसली द पीपल दैट यू वांट टू बी टीचर्स वो नहीं आ रहे। क्वालिटी बेहतर करने के लिए आप अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह करें। हर बंदा जिससे मैंने बात की है, पॉलिटिशियन ये वो बाकी, वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि फिजिक्स में क्रिटिकल थिंकिंग जरूर हो, पाकिस्तान स्टडीज में ना हो। ये स्विच है ऑन कर दिया क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में आ गई, ऑफ कर दिया चलो जी रटा मार लो। इट्स अ वे ऑफ बीइंग, इट्स हाउ यू रेज अ चाइल्ड, हाउ यू रेज द एंटायर क्लास एंड स्कूल एक्सेट्रा। उसमें लेकिन वो स्टेट को भी रास नहीं आता, वो किसी को भी रास नहीं आता। क्रिटिकल थिंकर्स इतने पाकिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान बदल जाएगा। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई थिंक द इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर इज रियली लुकिंग फॉर। फिर एजुकेशन की वैल्यू, स्टेट की एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो दे कांट डू डिफरेंशियल सिस्टम, बहुत घबराते हैं इससे। वो अब वो चैलेंज है उनके लिए जस्टिफाई करना, वो चैलेंज है उनके लिए कि वो इस तरह एक्सप्लेन करेंगे लोगों को। तो वो ये बहुत बड़ी एक ना, जब मैं थोड़ा सा काम भी किया पंजाब में मसलन एजुकेशन पे, शहबाज शरीफ साहब के थे, बड़ी इंसिस्टेंस होती है शहबाज साहब की खासकर, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी हर चीज करना चाहते थे कि अगर कोई आइडिया आया तो 36 डिस्ट्रिक्ट में आ ही लगा दो, ठीक है, कोई फर्क ना रहे किसी में। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि जो स्केल है हमारा पाकिस्तान का, पंजाब का, उसमें अगर आपने क्वालिटी इंटरवेंशन करनी है तो वो रोल आउट करना पूरे मुल्क में आसान है। टू से कि हाँ कुछ जगह कर दो कुछ जगह नहीं कर दो, टू क्रिएट दैट डिफरेंशियल बाय स्टेट प्रोविजन इज वेरी हार्ड फॉर दिस स्टेट। वो कहते हैं नहीं, उसका पुशबैक बहुत आएगा, देखें जी इन बच्चों को तो दे नहीं रहे, इन बच्चों को दे रहे। Now, how do you deal with something like that? Because clearly, quality is not something that is going to be easy to roll out across the entire system. पंजाब में 4.5 लाख के करीब टीचर है, 50,000 स्टूडेंट है। पूरे मुल्क का देखें तो 1.25 लाख के करीब गवर्नमेंट का स्कूल है, मिलियन टीचर है तकरीबन। इंटरवेंशंस सारी जगह एक जैसी क्वालिटी की वक्त लगेगा, उतना हौसला नहीं है रोल आउट करने। हम बहुत जल्दी रिटर्न्स चाहते हैं, एजुकेशन में रिटर्न्स जल्दी नहीं आ सकते। ये कहते हुए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सो इतनी देर अगर तब सुन लेते जब जवान था तो शायद अब तक हम कुछ कर ही लेते। 25-30 साल तो इसी में हो गए, लेकिन वो आज चाहते हैं कि आज ही कोई रिजल्ट आए, आज ही कोई चीज हो। That cannot happen on the quality side. Quality is a slow process. It will happen over time. It will happen with a lot of small interventions that we do across a whole range of things. चाहे वो टीचर इंसेंटिव में हो, टीचर ट्रेनिंग में हो, करिकुलम में हो, एग्जामिनेशन में हो, असेसमेंट्स जो एग्जाम्स के अलावा होती हैं उसमें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जो चीज़ भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो घरों का चेंज है उसमें हो, थिंकिंग अबाउट द सपोर्ट दैट चिल्ड्रन हैव आउट ऑफ स्कूल उसमें हो, these have to be done slowly, additionally over time. उतना सस्टेन किस्म का वो जो राइजन है पॉलिसी का, वो तो बेसिक नजर नहीं आता। तो इसलिए अब तक तो किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन पॉलिसी साइड पे hasn't been seen. Having said all that, अगर आप मुझसे पूछें एक इंटरवेंशन जहां से शुरू करना चाहिए तो वो असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन है, बिकॉज टीचिंग टू द टेस्ट इज वेरी कॉमन। तो अगर आप वो चेंज करना चाहें तो उससे फिर आप ट्रिगर कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर वो बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना
एक्शन बायस तो है गवर्नमेंट में, एक सेक्रेटरी हैं जो remain nameless, लेकिन मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा कि माधव सर ड्यूटी में रात को आप देखता हूँ सुबह करने लगता हूँ, तो जो है तो वो एक्शन बायस का बहुत है। लेट्स ओपन अप द फ्लोर। मैं जो हूँ 3 क्वेश्चंस दूंगा एट वंस, ताकि प्रोफेसर कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। और प्लीज आप जब अपना क्वेश्चन पूछें तो अपना नाम, अपनी एफिलिएशन और वो जरूर करें, और प्लीज मेक श्योर कि वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं एंड हो, कमेंट ना हो। अब्दुल राफी प्रोफेसर हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एजुकेशन से नस्ल दर नस्ल लेके पर मैंने सेंचुरीज सो बहुत अच्छी गुरु हुई आपकी गाना साथी पूछते शब्द बता रही तो बड़ी अच्छी पूरी बहुत सारे सवालों की बातों आपने दी, 2-3 पॉइंट्स में कहना चाहूँगा कि जिसका लोकल बॉडीज का आपका प्रोसेस है कि इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, या इस तरह का कोई प्रोसेस जो है वो माइनर इंटरवेंशन के लिए एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, क्योंकि जो आपने कहा कि स्केल है हमारा, उस स्केल के ऊपर बाकी सारी इंटरवेंशन देखना नहीं हो सकता, तो लोकल बॉडीज की तरफ के ऊपर कोई ऐसी चीज। दूसरा ये जो इसको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि वही एलीट स्कूल्स जो हैं वही एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत की मर्जी से पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने के लिए, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स को बेहतर करने के लिए, उसका कोई इफेक्ट आएगा या ये एक फर्दर कोशिश है इस चीज की कि वहाँ भी जो जूस है वो भी इकट्ठा कर लिया जाए और अपने मर्जी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, या उसका कोई फायदा होगा, एडवांटेज होगा क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से? जी मैं अब्दुल रहमान जी मगेरी से। डॉक्टर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आपने स्पेस की बात की कि वॉइस कौन करेगा इन लोगों के लिए जो लोग मिस आउट कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि वो स्पेस किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड करती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंसेंटिव खत्म हो गया कि वो कोई पब्लिक का एजेंडा रेस करें जिसके जरिए पब्लिक का प्रेशर आए। तो अगर ये इसको ऐसे समझा जाए कि ये वाला एक प्रॉब्लम एक सबसेट है एक बड़े प्रॉब्लम का, मैं डिस्कशन को और तरफ नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन बिकॉज एलिफेंट इन द रूम है, तो अगर ये वो बड़े वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ये छोटे वाला कभी सॉल्व नहीं हो सकेगा। योर कमेंट्स। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट राउंड। Assalamualaikum. I'm Muhammad Elbar Nazir. I'm basically a LinkedIn influencer and industrial engineer, also a business developer. So, sir, thank you for your points. और आपका एक पॉइंट मुझे बहुत क्लिक किया कि आपने जो ह्यूमन रिसोर्स की बात की है ना कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में या फिर एजुकेशन से किस तरह लिंक करती है, तो अगर एक स्टूडेंट मतलब जैसे आपने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और उन्होंने बाद में इन फ्यूचर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल रोल्स पे भी जाना होता है, और एक जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करता है और ओवरऑल सारा, तो अब ये जो एजुकेशन सिस्टम और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का गैप है, इन फ्यूचर अगर उसने किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप करना है, क्योंकि मैनेजर्स ही कल्चर डेवलप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, तो सर ये जो गैप है ये वहाँ पे इफेक्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, या फिर ये एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आ जाता है कि बस वो ह्यूमन रिसोर्स ही मैनेज करेगा? और लोकलाइजेशन से आपने बिल्कुल ही मेरे ख्याल में तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें एजुकेशन को लोकलाइज करना है, बहुत ज्यादा लोकलाइज करना है, पेरेंट कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके और लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, उसमें एक्सपेरिमेंट सारी दुनिया में हो, उसमें मिक्स रिजल्ट आता है। आई फील वी हैव टू लिव विद दोस मिक्स रिजल्ट। लाहौर से बैठ के या इस्लामाबाद से या कराची से 50,000 स्कूल मैनेज करना, 4,500 टीचर मैनेज करना इज इम्पॉसिबल। डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के 1200 स्कूल हैं, तकरीबन TCF जैसे उनके 2,000 स्कूल हैं,
district is more manageable. But अगर आपने आपने ये देखना वो जो classic theory है of economics में हम बहुत यूज करते हैं, which is the most optimal point for decision making where the most information is available for that particular thing. तो उसके तहत कुछ चीजें आप बिल्कुल नीचे ले आएंगे और कुछ चीजें आप हो सकता है प्रॉब्लम्स पे ही रखें। मसलन आपने किताबें डिजाइन करनी है, हो सकता है आप वो वहाँ करें, लेकिन जो आपने स्कूल की देखभाल करनी है, जो टीचर लोकल हायर करना है, तो आप उसको बिल्कुल नीचे ले जाइए, क्योंकि उसकी ज्यादा देखभाल बाकी चीजें वो वहाँ पे ज्यादा राइट। तो उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई चारा है, लेकिन अगेन वो इसी पॉलिटिकल इकोनॉमी में एम्बेडेड है, क्योंकि 18वीं तरमीम के साथ थर्ड टीयर भी आया था, लेकिन उसका जो हाल है वो हमें पता ही है कि जो अब तक हुआ। जो आपने बात की हैंडिंग स्कूल्स टू प्राइवेट सेक्टर की, 13,000 स्कूल पंजाब में आप देखिए सारे प्राइमरी स्कूल हैं। अच्छा, मैं पंजाब का तो बताया तो कि वो क्यों करना चाहिए, लेकिन उनके लिए तो बड़ा सिंपल है ये। उनका खर्चा तकरीबन 3-3.5 हज़ार पर बच्चा पर मंथ आता है। यहाँ वो 1200 से 1500 दे रहे हैं प्राइवेट। कैसे बचते हैं? एक दूसरा फर्क ये है कि जब गवर्नमेंट हायर करती है तो वो मिनिमम वेज से ज्यादा देती है अपने टीचर्स को। प्राइवेट सेक्टर में जो हायर कर रहे हैं, जैसे बात हुई, वो 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12 हज़ार जो भी है उस पर हायर कर। तो गवर्नमेंट जहाँ 2.5 टीचर रखती है या 2 टीचर, हमारे प्राइमरी स्कूल में एवरेज इतनी है अक्रॉस ऑलमोस्ट पाकिस्तान, वहाँ प्राइवेट सेक्टर 5 या 6 टीचर ला सकता है। ये मेन फर्क आता है फ्रॉम गिविंग द स्कूल ओवर। ठीक है, वहाँ हर क्लास के लिए टीचर मौजूद है, उनकी सैलरी कम है, बंदा मौजूद है, एक्चुअली तो बंदी मौजूद है जो पढ़ा रही है हर क्लास में, रादर देन वो जो मल्टी ग्रेड और बुरे हाल जो हमने गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट 5-6 टीचर नहीं कर सकती प्राइमरी स्कूल में, वो पढ़ाती है। तो उनके लिए ये 1 लाख नौकरी भी क्रिएट होगी। वो किसी को निकालने रहे, अपने जो टीचर उनके इन स्कूलों से उन्होंने लिए हैं वो और स्कूलों में डाल रहे हैं, लेकिन जो नई जॉब्स हैं वो सारी ये प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करेगा। अगर 13,000 स्कूल है, 6 टीचर पर स्कूल आ रहे हैं, तो आप खुद ही देखिए एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट क्या। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। अब सवाल ये है कि वो 10 साल के लिए लीज दे, एग्जिट स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, इतना लंबा कोई नहीं सोचता गवर्नमेंट। 10 साल बाद कौन होगा यहाँ, वो उसकी सर्जरी है। इस वक्त तो वो ये कर रहे हैं कि ये 13,000, देयर इज नो एग्जिट स्ट्रैटेजी इन दिस। परपेचुइटी में दिए हैं या 10 साल बाद रिवर्ट होंगे, क्या ये टीचर्स कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हमें पक्का करें, स्कूल तो गवर्नमेंट के हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि फ्रेंचाइज थे, अब हम इधर आएंगे। कोई उस किस्म की कोई ऐसी अभी थिंकिंग नहीं है इसमें। दिस इज आई थिंक मच मोर शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जिसमें गवर्नमेंट को लगता है पैसे बच रहे हैं, नौकरी होगी और ज्यादा क्रिएट होगी, इनरोलमेंट्स बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है वो 6 टीचर अगर खड़े हैं तो बच्चे आ जाएंगे। और क्वालिटी पे, यानी जो रिजल्ट्स हैं, अगर पहले 4,000 स्कूल जो दिए थे उसको देखें तो रिजल्ट्स पे फर्क आए। तो जो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं ना वो उनको मिल जा रहे हैं सस्ते में। तो वो 13,000 पे रुक गए हैं, मैं हैरान क्यों रुक गए हैं 13,000 पे। वो तो फिर उन्हें चाहिए कि अगर और मिलते हैं तो और भी दे दें, पर उसका इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ओवरऑल आएगा किसी का। वो सोचना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज देन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन, इज इट जस्ट फाइनेंसिंग? आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज गुड और बैड, वो तो बात, पर उसके सोचने के लिए कुछ हमें वी हैव टू थिंक थ्रू इट ना, कि भाई कहाँ कहाँ और कैसी चीजें हो रही हैं, क्या बाकी दुनिया क्या कर रही है। आई डोंट नो ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड where primary or up to high school government does not have a big role. Most countries that I know of, government responsibility high school तक मानी जाती है। वो फाइनेंसिंग की है या प्रोविजन की भी है, बहुत सारी जगह तो प्रोविजन है, शायद कुछ जगहों पे फाइनेंसिंग, जैसे अमेरिका में वो एडेड स्कूल्स हैं या क्या जिन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता होगा, अब उन्हें क्या कहते हैं, चार्टर स्कूल्स भी हैं, ये वो इस तरह की चीजें हैं, तो स्टेट पैसा उधर भी बहुत लगाते हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को स्टेबल डेवलप हो सकते हैं। तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ प्रोविजन इन इक्विलिब्रियम इज अ क्वेश्चन दैट वी डोंट हैव आंसर फॉर इट। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट।
पॉलिटिकल पार्टीज की आपने बात की जी, मेरे ख्याल में तो अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जहां भी मैथ एजुकेशन हिस्टोरिकली हुई है, टू द बेस्ट ऑफ माय रीडिंग, वो कभी नीचे से नहीं आया, ऊपर से आया। मेजी रेवोल्यूशन 1860s में जापान में, द मूवमेंट फॉर कॉमन स्कूल्स इन अमेरिका। अच्छा, मेजी में वो क्या था थ्रेड, अपर क्लासेस को लग रहा था कि अगर हमने पढ़ाया नहीं जापानी बच्चों को तो जापान महकूम हो जाएगा, दुनिया से पीछे रह जाएगा, हम कॉलोनाइज हो जाएंगे। उनके सरहदों पे बैठे थे ये सारे, आपने वो देखी होगी लास्ट सैमुराई ये वो वगैरह, उसमें मॉडर्न और ट्रेडिशन की जंग बड़ी क्लियर थी, जिसमें वो चेंज ला रहे थे, राइट। सो वो जंग, वो उस वक्त उसमें उन्होंने महसूस किया कि अगर नहीं करेंगे तो हम तो गए। ठीक उसके बाद उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन पे भी और चीजों में भी, लैंड रिफॉर्म ये वो बड़ा कुछ किया, लेकिन एजुकेशन वो ऊपर से आया। कॉमन स्कूल मूवमेंट सारी ऊपर से थी ना। अमेरिका में वो कह रहे थे कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई चाइना से, कोई इंडिया से, कोई फलानी जगह, इनको अमरीकी कैसे बनाना है, कॉमन स्कूल एक्सपीरियंस। कॉमन स्कूल इज व्हाट विल गिव देम एन एक्सपीरियंस ऑफ अमंग अदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड द मूवमेंट फॉर, क्योंकि पढ़ावे में काम कौन करेगा, वो यूरोप में सारे में तकरीबन, तो ये हमेशा ऊपर से आ रही है। ठीक है, नीचे की मूवमेंट इन्हें भी कम से कम नहीं देखी, बट वो फर्क क्या है कि ऊपर की मूवमेंट के देयर वाज अ रियलाइजेशन इन द रूलिंग क्लासेस, हाउएवर यू डिफाइन दोस रूलिंग क्लास, कहीं वो किंगशिप्स थी, कहीं वो डेमोक्रेटिक वगैरह, कि हमारे मुल्क और कौम की, उसे एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट कह लें, जो मर्जी कह लें, बका इसी में है कि ये, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी हुआ ना। इंग्लैंड में it was political parties that fought it out in this manner. लेकिन नीचे से मूवमेंट के जरिए मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पे दोनों रूट ही नहीं चाह रहे, नीचे से भी कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से भी कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से और कुछ चीजों में हम लगे हुए हैं, तो वो उसकी वजह से ये बिल्कुल डिफेक्ट है। अब वो क्यों नहीं लगता उनको कि एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में कि भाई वो ये अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये जो 250 मिलियन का मुल्क, Pakistan is the second youngest, I think, country in the world, maybe other than Afghanistan या और कुछ, one of the youngest. हमारी पता नहीं मीडियन एज 20-21 से उससे भी कम है। जापान की इस वक्त 50 के करीब, जब 40-45 पे पहुंची हुई है। इस तरह का फर्क है हमारा और दुनिया के मुल्क। तो अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों में, तो कल का पाकिस्तान होगा क्या, राइट? आई डोंट नो व्हाई ये रियलाइजेशन अभी तक मुझे तो नहीं नजर आई across the spectrum, चाहे वो political parties हो, चाहे वो किसी किस्म की भी एलीट्स हो, और चाहे वो establishment। आखिरी सवाल था जो ह्यूमन रिसोर्स का आपने पूछा, कोविड में एक चीज मुझे बड़ी क्लियर हुई थी। मैं ये निजाम में पढ़ाता था, उनमें यूनिवर्सिटी बंद हो गई, बच्चे घरों को चले गए। उसमें एक तो वो मसाइल आए ना कि इंटरनेट है या नहीं, मशीन है या नहीं, ये वो, पर बहुत सारे जो सवाल थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग इस तरह मुझे लगे कि हम क्लासेस तो फौरन ऑनलाइन ले गए, दूसरे दिन ना सारों ने हमने जूम पे शुरू कर दिया पढ़ाना, उसमें क्या मसला है, आप सब ने देखा होगा। लेकिन जो आउट ऑफ क्लास एक्सपीरियंस था बच्चों बच्चियों का, वो खत्म हो, उसको हम नहीं स्ट्रक्चर कर सके। वो अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। हाउ, लेकिन आपकी ज्यादा तालीम, मेरे अपने कॉलेज का जमाना भी और अभी मैं देखता हूँ लाउंज में और जहां भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बाकी जगह, ज्यादा तालीम तो आपकी मिलती है बाहर घास पे बैठ के, वो गवर्नमेंट कॉलेज में वो क्या है जो एम्फी थिएटर, उसमें बैठ के, वो साथ ही उर्दू बाजार है वहां जाके, या नारकली की सैर करके, ये जो भी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये ज्यादा तालीम तो पीएस से है, ज्यादा तालीम इंटरैक्शन, इनफॉर्मल इंटरैक्शन से, क्लास उसका एक छोटा हिस्सा। कोविड में मुझे बहुत क्लियर ये भी हुआ, और ये भी कि यूनिवर्सिटी इज अ वेरी यूनिक स्पेस इन दैट सेंस। एक दफा आप यूनिवर्सिटी के दरवाजे में आ जाए ना, तो इट डजंट मैटर हु यू आर, you have the same opportunities almost of interacting with peers, with faculty, have the same resources available in the library, जो घर में हो नहीं सकता, क्योंकि घर बहुत अनइवन है। वहां पे आप किसी की, मसलन हमारे बहुत सारी बच्चियां कहती थी कि हमारे पास तो बैठने की जगह नहीं,
तो वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था ना, रूम ऑफ माय ओन या रूम ऑफ वन रूम, उसकी अहमियत मुझे कोविड में पता लगी। तो बहुत सारी बच्चियों ने कहा, खासकर बच्चियां, अच्छा डिफरेंशियल बर्डन बच्चियों पे बहुत ज्यादा था केयर का निस्बतन लड़कों पे। ठीक है, कि कोई बीमार हुआ तो ख्याल कौन रखेगा, बच्चियां रख रही वगैरह वगैरह, राइट। मसलन एक मेरी स्टूडेंट थी, वो कभी उसने ना वीडियो ऑन की ना ऑडियो ऑन करती थी, मुझे पता भी नहीं लगता था वो हैवी क्लास में है। तो एक दिन मैंने क्लास के बाद उसको कहा कि यार ये क्या है, उसने कहा सर मैं वॉशरूम मिलता हूँ लेकिन मैं नहीं खोल सकती अपनी वीडियो और ऑडियो, मेरे साथ इसी घर में ना हमारे में एक चचा भी रहते हैं, वो गालियां बहुत देते हैं। तो वो किसी वक्त भी कमरे में आ गए और उन्होंने कुछ बोल दिया तो फिर क्या होगा। Look at that, it's just a small thing, but what a difference it makes, because she couldn't interact with others at all. Right? Now, how do you create those structures for young people? Because हमारे वो जो हम बात कर रहे हैं social structures की, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ना अपर क्लास में है ना मिड में। There's a friend of mine जो पेशावर रहता है, वो मुझे कह रहा था कि मैं लाहौर मूव करना चाह रहा हूँ कुछ साल पहले। कि मैंने कहा क्यों? कहता देखें मेरा लड़का आता है ना स्कूल से, होमवर्क वगैरह करता है, फिर वो बाहर खेलने चल जाते हैं। मेरी 2 बच्ची हैं, वो सुबह स्कूल जाती हैं, वो पर्दे वाली कार में, दोपहर को आती हैं, उसके बाद एक कदम घर से बाहर नहीं निकाल सकती। आई एम वेरी वरीड अबाउट। उसने कहा यार घर में ही आते बड़े हैं तो वहां पे कोई बैडमिंटन कोर्ट या वो, कहता नीरज नहीं आएंगे। तो वो जो उसके बगैर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। आखिरी बात एक कर, लेकिन एक बड़ा फेमस केस हुआ था येल का। येल ने एक स्टूडेंट को एडमिट किया, येल यूनिवर्सिटी न्यू हेवन में है, उसने एक स्टूडेंट को एडमिट किया फॉर अंडरग्रेड। स्टूडेंट ने कहा फॉर डायटरी एंड अदर रीजंस रिलीजन के, आई डोंट वांट टू लिव इन योर कॉलेज अकोमोडेशन, मैं न्यू हेवन में कमरा ले लेता हूँ, वहां रह जाऊंगा, डे स्कॉलर बन जाता हूँ कि आपके वो रेजिडेंशियल कॉलेजेस में मैं नहीं हूँ। ये ने उसका एडमिशन रिवोक कर दिया। वो बात कोर्ट में गई, स्टेट सुप्रीम कोर्ट तक गई, एंड येल वन। बिकॉज येल का आर्ग्यूमेंट क्या था, वो कह रहे थे कि आवर एजुकेशन इज अ टोटल 24 आवर एक्सपीरियंस, हम उसके बगैर अपनी तालीम नहीं दे सकते। अगर इन्होंने डे स्कॉलर टाइप तालीम देनी है तो और बहुत यूनिवर्सिटियां हमसे भी अच्छी हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, फलाना फलाना, आप वहां चले जाए। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये तो तालीम हम दे रहे हैं वो ये टोटल एक्सपीरियंस है। तो अनलेस ये यहाँ आए और ये इस तरह इंटरैक्ट करें सबसे इन कंडीशंस दैट वी आर कंट्रोलिंग, हम ये नहीं मान पा रहे। एंड दे वांट, सो उसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है। सैडली अभी हमने उस साइड पे तालीम में कोई गुफ्तगू शुरू नहीं।